हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आयमन एंड आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक कॉस्मॉन के बारे में एंड दिस इज़ चैप्टर 1 ऑफ इट, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। हम बात करने वाले हैं आर्यन नाम की एक लड़की के बारे में। सो दिस स्टोरी इज सिचुएटेड इन बॉम्बे एंड ही इज़ अ स्ट्रगलिंग एक्टर और ये जाता है एक स्टूडियो में ऑडिशन करने के लिए। ही सीज अराउंड एंड उसके कंपैरेटिवली बाकी सब ज़्यादा टॉल है, ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं एंड ही इज़ जस्ट सिटिंग ओवर देयर nervous and just hoping and praying that he gets this role. And the casting lady comes out and वो देखती है and she points out couple of folks and just says like हाँ अच्छा आप लोग अंदर आ जाइए. Aryan still sitting over there so nervous and looking and staring at her just so that she can point out at him और उसे भी ऑडिशन का एक चांस मिले. And this group of 3-4 guys just goes inside and he still continues to sit just rehearsing his lines and staying positive कि यार मिल जाएगा. And after like half an hour, 45 minutes, the casting lady comes out and says that okay, we have already finalized this character, but we wish you good luck and hope for the best, and that's it. So ये सुनने के बाद आर्यन बहुत डिप्रेस हो जाता है because this is not something which is new. It's not first time rejection. He is getting rejected more like almost every day in all the auditions, and ये सुनने के बाद he again break down and then he just starts to walk out of the studio. अब वो जाता है अपने घर और उसके लिए उसे लेना होता है ऑटो रिक्शा. So he walks out and calls an auto rickshaw and ask him that okay मुझे ये अपार्टमेंट के पास जाना है, so how much will you take? And the auto rickshaw, as it's like night time, so he doesn't want to turn on the meter and he says like नहीं भैया इसके लिए तो 150 लगेंगे. And Aryan looks out at the post and sees damn only $100. फिर वो उसे बताता है कि भैया एक काम कीजिए, आप मुझे वो सिग्नल है ना उसके पास छोड़ दीजिए, आप शेयरिंग ले लीजिए कि मेरे पास पैसे नहीं है. Then the rickshaw wala looks at him and then he is like fine, just come in man, damn it. And yeah, then the rickshaw driver drops him at the signal and then he is walking back to his home just thinking कि यार शायद करियर में कुछ और परस्यू कर लिया होता, शायद this is not my cup of tea. And ये सोचते सोचते वो जाता है अपने अपार्टमेंट में. And as soon as he opens the door he remembers अरे आज डेट क्या है, oh this 29th, I have to pay my rent, oh damn. And ये सोचते सोचते वो चेक करता है अपना बैंक अकाउंट बैलेंस, only $300, oh god. इस बार फिर से उसके पास पैसे नहीं होते to pay the rent. And just thinking कि should I tell my parents again कि यार मुझे और एक बार पैसे दे दो, कि should I do some part-time job maybe at Subway or any other small job to pay the rent. And ये सोचते सोचते he enters the apartment and he sees Samir. Samir is the guy who is earning well, he's doing well, and he's just sitting on the sofa doing his own works with the headsets on, listening to music, having good time. And as Aryan walks in, Samir says, hey bud. And Aryan is like hi, and Aryan thinks maybe this time I should ask Samir to pay for this month and maybe next month I will go back and get some money to pay back. So hesitantly he still goes and approaches Samir and says that hey buddy, ये महीने का रेंट तुम पे कर दोगे क्या, मैं बाद में तुम्हें रीपे कर दूँगा जब I have some money या मेरे पेरेंट्स से मैं लेके दे दूँगा.
Samir hesitates a bit because he knows that Aryan is not in a good place financially, but Samir is still like, okay bhai, it's okay, मैं पे कर देता हूँ, you can give me later on करके. Then Aryan gets up, he's a bit relaxed as he doesn't have to worry about money, and maybe he can borrow from his parents or his elder sister and then pay back the rent. So he gets up and now he's feeling hungry. तो वो जाता है, वो खाना बनाता है, and he's a kind person. So वो खाना थोड़ा ज़्यादा बना देता है. He knows कि यार मेरे रूममेट्स भूखे प्यासे बैठे होंगे, तो उनके लिए भी बना ही देता हूँ. सो वो बनाता है और फिर समीर को बोलता है, हे मैंने बनाया है खाना, तुम भी आके खा लेना, थोड़ा ज़्यादा बना दिया है. समीर लाइक ऑलवेज ही लुक्स एंड सेज, थैंक्स बडी, आई न्यू वी वर जस्ट वेटिंग फॉर यू टू कम बैक होम एंड कुक सम फूड सो दैट वी कैन फीड. सो या that's Aryan for you guys. खाना बना लिया तो अब आर्यन बैठता है खाना लेके, मोबाइल पे स्क्रॉल करता रहता है, मैसेज पढ़ता रहता है, और सडनली वो देखता है कि उसकी दीदी का, सिमरन का मैसेज आया. तो ओपन करके रीड करता है. उसने लिखा है, छोटे दिवाली में क्या कर रहा है, घर आ रहा है ना. तो वो रिप्लाई करता है, नहीं यार पता नहीं, मैं आऊँगा अगले हफ्ते मेरी. और रिप्लाई करता है, और वहाँ से उसकी बहन एज ऑल दी एल्डर सिस्टर रिप्लाई करती है, तू अगले वीक नहीं, तू कल आ रहा है, तेरी टिकट करा रही हूँ मैं, ठीक है, टिकट भेजिए पंचवटी की, कल 7 बजे आ जाना. और ये मैसेज करके वो भेजती है. और आर्यन को पता है कि उसकी बहन के साथ तुम डिस्कस नहीं कर सकते हो. सो वो बोलता है ठीक है, और वो ही सोच रहा होता है जाना तो कल है ही. और दिस कट डाउन टू गोइंग बैक टू नासिक, एंड उसको इतनी सारी आवाज़ें आ रही होती है किचन में से. आवाज़ों की वजह से वो उठ जाता है और उठ के बैठता है, सोचता है यार ये सुबह सुबह सोने नहीं देंगे मेरे को. फिर बाहर जाके देखता है तो रोहन बैठा होता है. रोहन वही उसका चड्डी बड्डी यार, सोसाइटी का दोस्त, स्कूल का दोस्त, उसका बेस्ट फ्रेंड बेसिकली, वो बैठा होता है. और आर्यन एकदम शॉक में जाके उसे बोलता है, तू यहाँ क्या कर रहा है. और रोहन बोलता है, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है, मुझे ये बता. और फिर सब लोग हंसने लग जाते हैं. आर्यन की मम्मी उसे डोसा बना के दे रही होती है, एंड वो मम्मी बोलती है कि आर्यन अभी तुम उठ गए हो तो तुम भी बैठ जाओ, साथ में नाश्ता कर लेना. और रोहन बताता है कि मैं तो सिर्फ चक्री के लिए मशीन लेने आया था, और आंटी ने बोला खाना खा लो, तो मैं भी बैठ गया, और बता कैसे काम चल रहा है वगैरह. एंड आर्यन बताता है कि नहीं, वो अभी भी देख रहा है जॉब के लिए और ट्राई कर रहा है, ऑडिशंस वगैरह दे रहा है. एंड फिर आर्यन पूछता है कि उसका काम, रोहन का काम कैसे चल रहा है. तो रोहन बताता है कि यार मैनेजर मेरा बहुत बड़ा अच्छा हम ये इसमें गालियाँ नहीं देंगे. सो बताता है कि यार इतना प्रेशर है, हॉलीडेज़ या दिवाली के टाइम पे भी ब्रेक नहीं देता, वो बहुत काम निकलवाता है, पैसे नहीं देता, काम ज़्यादा निकलवाता है. और वो सब साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं हंसी खेल के साथ. एंड फिर रोहन मशीन उठाता है, निकल रहा होता है, और पूछता है कि यार आर्यन तू क्या कर रहा है आज रात को, चले वहाँ पे अपने जुगाड़ू प्लेस पे बातें करेंगे. तो आर्यन बोलता है हाँ भाई मैं तो फ्री हूँ, आ जाना लेने, मिलते हैं फिर. तो उस तरीके से वो वहाँ से निकल जाता है. फिर कट करते हैं हम, एंड देन वी विल गो टू रोहन, जो कि आता है आर्यन के घर उसे पिकअप करने के लिए. वो दोनों कॉलोनी के फ्रेंड्स होते हैं तो काफ़ी पास रहते हैं. रोहन आता है, आर्यन को बुलाता है, एंड आर्यन एंड दे बोथ गो टू दिस प्लेस जो कि फूड एंड रेस्टोरेंट एंड विद बार देता है. एंड दे जस्ट सिट एंड टॉक अबाउट हाउ थिंग्स आर गोइंग विद देयर लाइफ. एंड आर्यन बताता है कि यार it's very difficult to get an audition and even to talk to a director or
प्रोड्यूसर एंड गेट अ रोल, एंड वो बताता है कि यार इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, और अभी उसे ऐसा लग रहा है कि शायद ये कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, शुडंट परस्यू दिस एज अ करियर ऑप्शन, और बार बार अपने पेरेंट्स से, अपनी बहन से पैसे मांगना बहुत एम्बेरसिंग हो जाता है, एंड मे बी एक्टिंग इज़ नॉट समथिंग विच ही इज़ मेड फॉर। एंड रोहन बोलता है यार क्या बकवास कर रहा है तू, ऐसा थोड़ी ना होता है, अपनी डेस्टिनी हम ही खुद लिखते हैं, एंड तू परस्यू कर, हम सब तेरे साथ है, तुझे करना चाहिए। आर्यन फिर भी रिग्रेटफुली कहता है कि यार मैं इतने साल ऑलरेडी दे चुका हूँ, मुझे नहीं बताइए आगे क्या होने वाला है, अगर अब तक नहीं हुआ तो शायद फ्यूचर में नहीं होगा। और रोहन बोलता है यार तू चिल कर भाई, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और वेटर को बोलता है यार और एक बनाओ पैक भाई के लिए, एंड दिस द कन्वर्सेशन इज दे हैविंग। और फिर वो देखते हैं यार 12 बज गए, मम्मी बहुत डांटी। फिर रोहन और वो आर्यन निकलता है, रोहन गाड़ी निकालता है, आर्यन वहाँ पर खड़ा होता है, एंड सडनली आर्यन गिर जाता है। रोहन देखता है यार ये क्या हो गया इसको, वो पार्किंग में वापस बाइक अपनी स्टैंड पे लगाता है, निकलता है, आर्यन को बोलता है आर्यन तू ठीक है। आर्यन खड़ा हो जाता है, बोलता है हाँ पता नहीं कुछ चक्कर वक्कर आ रहा है तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। वो रोहन भी थोड़ा यार टेंस हो जाता है कि पता नहीं ज़्यादा पी ली क्या, चढ़ गई इसको। वो रोहन बोलता है नहीं ठीक है चल तू बैठ मेरे पीछे, हम सॉर्ट कर लेंगे। और पीछे से जोर से आ जाती है बस के हॉर्न की, वहाँ पे एक लेडी चिल्ला रही होती है, और रोहन मुड़ के पीछे देखता है क्या हो गया, तो बस के नीचे एक लड़की आने वाली होती है, मतलब लड़की खड़ी होती है, बस आ रही होती है, उसकी मम्मी चिल्ला रही होती है वो बच्ची की, और वो देखता है उतने में आर्यन जुफ जाता है, बच्ची को पकड़ता है और उस तरफ लेके जाता है, एंड देन रोहन सीज आर्यन, उसने सिर पे हेलमेट जैसा कुछ आ जाता है। वो दिखता है यार ये क्या हो गया, ये ऐसे कैसे दिख रहा है, एंड बस उसके थ्रू क्रॉस करके निकल जाती है। और फिर वो कंटिन्यू करता है आर्यन को देखते, और उसका हेलमेट अभी भी रहता है, वो उसने बच्ची को पकड़ा है, हेलमेट अभी भी है। उसकी मम्मी भागती है और अपनी बेटी को पकड़ती है और बोलती है थैंक यू सो मच, और भीड़ इकट्ठा हो रही होती है अभी। रोहन भी टेंस, आर्यन भी टेंस। रोहन बाइक चालू करता है, बोलता है आर्यन को बैठ भाई, पता नहीं क्या झोल हो जाएगा, अपने को पकड़ेंगे लोग। तो आर्यन अभी बैठ गया पीछे, और रोहन बोलता है कि यार ये तेरा हेलमेट ये तूने कैसे किया। और आर्यन बोलता है यार मेरे को कोई अंदाज़ा नहीं है ये कैसे आया, और ये निकल भी नहीं रहा है। अरे भाई रोहन बोल रहा है पता नहीं क्या हो गया, ये तो पहले कौन सा नशा कर लिया है, हेलमेट नहीं निकल रहा है। वो दोनों बाइक आगे जाके रुकाते हैं ऐसे एक सुनसान सी जगह पे, और रोहन उसे बोलता है कि देख भाई रिलैक्स कर, सांस ले, कुछ नहीं निकल जाएगा हेलमेट, ट्राई कर। एंड वो धीरे धीरे इनहेल करके एक्सहेल करता है, आर्यन शांत होता है, और हेलमेट उसका सूट सब गायब, ही इज बैक अगेन नॉर्मल। रोहन उसे देख के बोलता है यार ये कुछ तो गड़बड़ है, अभी हम काम करते हैं, घर जाके सोते हैं, कल सुबह फिर सोचेंगे क्या हो रहा है। और वो दोनों बैठते हैं, रोहन आर्यन को घर ड्रॉप करता है, रोहन जाके सो जाता है। ये अज्यूम करते हैं कि भाई ये एक बहुत बुरा सपना है। और हाँ अब देखते हैं चैप्टर 2 में क्या होता है, ये बुरा सपना है कि नहीं।